Assalamu alaikum dear students, welcome to the course of Psychological Testing and Measurement. I am here your course instructor Nazia Yaqoob. Our today's topic is about validity and content validity majorly. We will see the definition of validity first and then specifically one of the type will be discussed in detail. Main topics to learn in today's topic are types of validity, content validity, importance of content validity, content domains, method to measure content validity, assessment content validity, evaluating content validity, face validity, and content validity, applications of content validity. First of all, we will see a graphical representation of the validity with its types. Validity is the extent to which an indicator really measures the concept. आपने कोई एक मेजर बनाई है, वो किसी कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए बनाई है, वो एक्चुअली में उसे किस हद तक मेजर कर रही है, मेन इसके अंदर हम इस चीज को देख रहे होते हैं. 5 ways to assess validity. There are 5 ways. The first one is face validity, second is concurrent validity, third is predictive validity, fourth is construct validity, and fifth one is convergent validity. The face validity has another name known as content validity. What do you study here in the face validity? Ask other experts, do you think this is valid? जो हम content validity कहते हैं, आपके ख्याल में क्या ये वाकई में एक valid measure है validity को assess करने के लिए? Now, concurrent validity. Compare results against another measure known to be valid. आप किसी और valid measure के साथ जब results को compare करते हैं, that is concurrent validity. Next है हमारे पास predictive validity. Can you use the measure to make accurate predictions? क्या आप किसी एक measure को इसलिए use कर सकते हैं कि आप इससे कोई prediction कर सकें? जो next type है हमारे पास that is construct validity. Can you deduce hypothesis using the measure? क्या आप इस measure के through hypothesis जो हैं उन्हें deduce कर सकते हैं? Last one is convergent validity. Do other research methods provide similar measurements of the concept? किसी और मेथड से अगर आप स्टडी करते हैं बिहेवियर को, क्या वो इसी तरह से आपको मेजरमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जैसे इस मेजर के थ्रू आप फील करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन मिली है? Mainly there are 3 types. Others are the subcategories of the same type. For example, content validity, criterion validity, and construct validity are the major types. Others are considered as the subparts of both above said types. For example, content validity has another type or a subset known as face validity, and criterion related validity has 2 types, concurrent validity and predictive validity. And construct validity is a separate entity, and we have discussed it as alone in a separate chapter. Now, content validity describes a judgment of how adequately a test sample's behavior representative of the universe of behavior that the test was designed to sample. किसी एक specific behavior को represent करने के लिए जो हमारे पास judgments हैं उनको हम कहते हैं कि ये content validity को assess कर रही हैं. For example, the universe of behavior referred to as assertive is very wide-ranging. A content-varied paper and pencil test of assertiveness would be one that is adequately representative of this wide range. अब assertiveness को measure करने के लिए हमारे पास एक paper pencil test ही होगा और
उसमें ऐसा कंटेंट होगा जो कि assertiveness की मेजरमेंट ही कर रहा हो। We might expect that such a test would contain items sampling from hypothetical situations at home, such as whether the respondent has difficulty in making her or his views known to fellow family members. On the job, such as wealth, the respondent has difficulty in asking subordinate to do what is required of them. And in social situations such as whether the respondent would send back a steak not done to order in a fancy restaurant. These are the things that are the part of content validity in a given situation. Ideally, test developers have a clear, as opposed to fuzzy, vision of construct being measured, and the clarity of this vision can be reflected in the content validity of the test. कोई भी टेस्ट डेवलपर जब वो डेवलप कर रहा होता है टेस्ट उस टाइम वो एक बहुत क्लियर विजन के साथ टेस्ट की डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी टेस्ट के अंदर जब हमने कोई भी एक टेस्ट डेवलप करना होता है हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क हमने मेजर क्या करना है बेसिकली किसी एक कंस्ट्रक्ट को लेके उसी की मेजरमेंट के लिए हम स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल अगर लाइफ सेटिस्फेक्शन मेजर करनी है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू लाइफ सेटिस्फेक्शन मेजर हो सकती है जो कि लाइफ सेटिस्फेक्शन की मेजर में अपना रोल प्ले कर सकती हैं ऐसी स्टेटमेंट्स ऐड की जाएंगी जो सिर्फ लाइफ सेटिस्फेक्शन को ही असेस कर रही हूँ इसलिए जब टेस्ट डेवलपर टेस्ट को डेवलप करने के लिए आइटम्स जो है वो डेवलप कर रहा होता है कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है उसके अंदर मेन ये कॉन्सेप्ट लेके चलता है कि बेसिकली उसने ये टेस्ट डेवलप किस लिए करना है It is a non-statistical type of validity that involves the systematic examination of the test content to determine whether it covers a representative sample of the behavior domain to be measured. For example, does an IQ test have items covering all areas of intelligence discussed in the scientific literature? आपके नज़दीक IQ क्या है? लिटरेचर IQ किसे कहता है? जो स्केल आपने डेवलप किया है IQ के मेजरमेंट के लिए क्या वो उन सारे डोमेन्स को कवर करता है जो IQ के अंदर असेस की जाती हैं उसमें हमारे पास IQ के असेसमेंट में वर्बल इंफॉर्मेशन भी होती है हमारे पास रीजनिंग भी होती है हमारे पास जो रीजनल इंफॉर्मेशन है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसका रेलिवेंट भी एक पार्ट होता है क्या आपने जो IQ असेस करने के लिए टेस्ट बनाया है या कोई भी टेस्ट IQ टेस्ट करने के लिए जो बना हुआ है क्या उसके अंदर ये सारी डोमेन्स मौजूद हैं जो कि IQ की स्क्रीनिंग के लिए होनी चाहिए Content validity is determined by the degree to which the questions, tasks, or items on the test are representative of the universe behavior the test was designed to sample. It is a useful concept when a great deal is known about the variable that the researcher wishes to measure. Content means items in the test. The test items should correspond with the item domain. Whatever we have learned should be included. उस जिस वेरिएबल के लिए जिस कंस्ट्रक्ट के लिए आप काम करने जा रहे हैं टेस्ट डेवलप करने जा रहे हैं items in the test should be relevant to that in this process we have to take care of the learning material textbook took and the instructions taking care of these sources we move to construct the test in this case we use item specification means how much course is included taking care of the length of material. Then we take care of application. We have to select the items. It should be 4 times longer and then we go for pilot test or tryout. Then we go for item analysis to see which item should be retained, rejected or modified. It requires statistical work. आपने एक स्केल फर्ज करें 10 आइटम्स का आपने बनाना है तो आपने जो आइटम्स कंस्ट्रक्ट करनी है
कंटेंट वैलिडिटी को फाइनलाइज करने के लिए पहले आपने 4 टाइम्स आइटम्स जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल 10 आइटम्स के स्केल के लिए हमें 40 आइटम्स जनरेट करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद हम पायलट स्टडी के लिए जाएंगे या ट्राई आउट के लिए जाएंगे। उस पर हम फाइनलाइज करेंगे कि हमने किन आइटम्स को रखना है। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर आइटम एनालिसिस। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सी आइटम रिजेक्टेड हैं और कौन सी एक्सेप्टेड हैं, जिनको रखना है और जिनको हमने मॉडिफाई करना है या रिमूव करना है अपने जो हमने स्किल डिज़ाइन किया उसमें से। इसके लिए जो लास्ट पार्ट है इसमें हमें स्टेटिस्टिकल वर्क जो है वो करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ SPSS। We use those items in which fulfill the requirement of psychometric test। जो items हमारे पास psychometric test की properties को fulfill कर रही होंगी हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे, retain करेंगे। Validity can also be checked empirically in terms of academic performance। We use it with correlative method। If they are significantly correlated, we can say it valid। Content validity evidence involves the degree to which the content of the test matches a content domain associated with the construct। आपने एक कंस्ट्रक्ट लिया, उससे रेलिवेंट आप स्केल डेवलप करना चाह रहे हैं। अब आपके उस स्केल के अंदर जो आइटम्स हैं उनका कंटेंट उस कंस्ट्रक्ट से कितना रेलिवेंट है, कितना उसके अकॉर्डिंग है। कंटेंट वैलिडिटी इस चीज़ को असेस कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अ टेस्ट ऑफ द एबिलिटी टू ऐड 2 नंबर्स should include a range of combination of digits। अगर आपने कोई एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया है जो कि कोई से 2 नंबर्स को ऐड करने की एबिलिटी रखता हो, हम ये असेस करना चाहते हैं कि इस पर्सन में 2 नंबर्स को ऐड करने की एबिलिटी मौजूद है या नहीं, तो इसके अंदर ऐसे टेस्ट के अंदर डेफिनेटली डिजिट्स इंक्लूड होंगे। A test with only 1-digit number or only even numbers would not have good coverage of the content domain। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया जा रहा है आपको कि अगर किसी टेस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर होगा तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, कंटेंट डोमेन को ये फुलफिल नहीं कर रही, जो क्राइटेरिया है ये उसे मीट नहीं कर रही। Items are chosen so that they comply with the test specification which is drawn up through a examination up through a thorough examination of the subject domain। हम आइटम्स को जो हमारा कंस्ट्रक्ट है उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं। हम एक आइटम खुद डिज़ाइन करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं whether this item is asking about the same construct we have trying to measure। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? The measurement of content validity is important in employment where tests are used to hire and promote the employees। जहाँ पे employees को hire किया जाता है वहाँ पे इसकी importance बहुत ज़्यादा है। They are carefully scrutinized for their relevance of job, right man for the right job। किसी भी पर्सन की स्क्रूटनी करने के लिए, ये देखने के लिए कि दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर द जॉब, हम इस मेथड को यूज करते हैं। और कंटेंट वैलिडिटी उस पर्सन की असेसमेंट के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। While assessing the content validity, the items are very carefully chosen। An expert opinion can also be requested on 3 rating scale as under: essential, useful but not essential, and not necessary। बाज़ औक़ात हम जो कंटेंट होता है उसे इन 3 रेटिंग्स में देखते हैं कि ये वाली आइटम जो है इस कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग इस स्केल के अंदर कितनी वैल्यू रखती है। फॉर एग्जांपल ये आइटम एसेंशियल है या ये आइटम यूजफुल है बट नॉट एसेंशियल और नॉट नेसेसरी। जब ये रेटिंग हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम एसेंशियल और यूजफुल आइटम्स को अपनी स्टडी का, अपने स्केल का हिस्सा रखते हैं। नाउ मेथड टू मेजर कंटेंट वैलिडिटी। कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं? One widely used method of measuring content validity was developed by Lash। It is essentially a method for gauging agreement among raters or judges regarding how essential a particular item is।
ये बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि इसमें हम रेटर्स और जजेस को जो है वो इस एग्रीमेंट पे आए थे कि कौन सी पर्टिकुलर आइटम जो है वो एसेंशियल है और कौन सी पर्टिकुलर आइटम एसेंशियल नहीं है। For example, to assess the employment test, Losh proposed that each of subject matter expert raters on the judging panel respond to the following questions for each item. Is the skill or knowledge measured by this item is essential, useful but not essential, or not necessary to the performance of the job? यानी कि उस स्केल के अंदर जो हमने एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बनाया लॉश ने, उसके अंदर हमने इन 3 की बेसिस पे डिसाइड किया कि ये जो पर्टिकुलर स्केल है वो हमारी जॉब के लिहाज से, उस जॉब परफॉर्मेंस के लिहाज से कैसी है। According to Losh, if more than half the panelists indicate that an item is essential, that item has at least some content validity. अगर पैनल के अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं, 5 ने भी कह दिया कि ये आइटम एसेंशियल है, तो इसका मतलब है कि वो आइटम कंटेंट वैलिडिटी रखती है। Greater levels of content validity exist as larger numbers of panelists agree that a particular item is essential. मज़ीद बेहतर जो हमारे पास कंटेंट वैलिडिटी का लेवल आता है वो उस वक़्त आता है कि जब मज़ीद जो पैनलिस्ट होते हैं वो इस चीज़ के लिए वोट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 पैनलिस्ट कह रहे हैं दिस आइटम इज़ एसेंशियल, मैं उस आइटम की कंटेंट वैलिडिटी बहुत ज़्यादा है। 7 कह रहे हैं तो भी ज़्यादा है, और अगर 5 कह रहे हैं तो इसका मतलब किसी हद तक वो आइटम कंटेंट वैलिडिटी रखती है। एंड देयर आर चांसेस दैट विल बी द पार्ट ऑफ द टेस्ट। Now assessing content validity. Content validity represents a judgment regarding the degree to which a test provides an adequate sample of a particular content domain. The basic procedure for assessing the content validity consists of 3 steps. Describe the content domain, determine the areas of the content domain that are measured by each test item. Compare the structure of the test with the structure of content domain. ये सारी चीज़ें आपने फोकस में रखनी है while you are assessing content validity if you are asked to assess the content validity. कंटेंट की डोमेन क्या है, कंटेंट किस डोमेन से बिलोंग करता है, हमने उस चीज़ को पहले डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। डिटरमिन द एरियाज ऑफ द कंटेंट डोमेन, किन एरियाज से बिलोंग करता है, उसके अंदर कौन कौन से एरियाज हैं जिनको आपने अकॉर्डिंग टू कॉन्स्ट्रक्ट असेस करना है। फॉर एग्जांपल आईक्यू के बारे में हमने बात की थी पिछले स्लाइड्स के अंदर। आईक्यू जो है उसकी मेजरमेंट में हमारे पास वर्बल, नॉन वर्बल, ज्योग्राफिकल और हमारे पास जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये सब की सब चीज़ें उसके अंदर असेस हो रही होती हैं। तो आपने ये देखना है कि आपके पास जब आपने कंटेंट एनालिसिस करना है या कंटेंट वैलिडिटी को असेस करना है, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेदर दिस particular item is assessing the same construct according to the domains of the construct or not. Compare the structure of the test with the structure of content domain. अब एक आइटम जो है उसके अंदर रिस्पॉन्स जो है येस और नो की फॉर्म में हो सकता है सिर्फ। क्या हमारा टेस्ट जो है उसी डोमेन के अंदर असेस कर रहा है, रिस्पॉन्स कैटेगरीज कौन सी हैं उसकी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। Then evaluation of content validity. Content validity is estimated by evaluating the relevance of the test items individually and as a whole. टेस्ट आइटम जो हैं वो कितनी रेलिवेंट हैं एज एन इंडिविजुअल और एज अ होल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टेस्ट की आइटम्स जो हैं आप इंडिविजुअली टेस्ट को जब स्टडी करते हैं, एक-एक आइटम स्टडी करते हैं, तो आपको उनके अंदर लिंक मालूम नहीं होता। एज अ होल जो टेस्ट है उसके अंदर और इंडिविजुअल आइटम सब आपस में लिंक्ड होने चाहिए। ईच आइटम शुड बी अ सैम्पलिंग ऑफ नॉलेज और परफॉर्मेंस विद टेस्ट पर्पस टू मेजर।
अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास आइटम्स होनी चाहिए उनमें हर एक के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो जिस कंस्ट्रक्ट के लिहाज से डिज़ाइन की गई है वो उसी को मेजर कर रही हो। Taken collectively, the items should constitute a representative sample of the variable to be tested. अगर आप उनको कलेक्टिवली लेते हैं तो आपको सारी आइटम्स को पढ़ने के बाद अंदाज़ा होगा कि ये एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को या वेरिएबल को मेजर कर रहा है जिसको टेस्ट करने के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप IQ टेस्ट कोई लेते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसके आइटम्स अगर आप स्टडी करें तो आपको उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन भी नज़र आएंगे, वर्बल के भी आएंगे, नॉन वर्बल के भी आएंगे। ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर होंगी, आपको उसका हिस्सा नज़र आएंगी। At the same time, it is essential that the content should not be compounded by introducing irrelevant problems and materials. साथ ही साथ इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट्स ना हो जिनका कोई मकसद ही नहीं है। Validity of the content should not depend upon the subjective judgment of only one specialist. और कंटेंट की वैलिडिटी जो है सिर्फ एक पर्सन ही डिसाइड मत करे that this content is valid for the test. इसकी जब वैलिडिटी असेस करवानी है तो एटलीस्ट 3 to 4 पार्टिसिपेंट्स जो हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप इसकी स्क्रीनिंग करवाएं. It should be based upon careful analysis by several experts of instructional objectives and of actual subject matter studies. जो आपने मेन चीज़ स्टडी करनी है उस चीज़ को भी देखा जाएगा उसमें, और आप उस स्केल की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या प्रोवाइड करते हैं ये भी उसके अंदर देखा जाएगा। इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप किसी एक क्लाइंट को कोई भी एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट से रेलिवेंट स्केल प्रोवाइड करते हैं या टेस्ट प्रोवाइड करते हैं तब उनको क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, उसमें आप क्या इंफॉर्मेशन देते हैं बिफोर द टेस्ट स्टार्टअप। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट करना होता है उस टाइम आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी टेस्ट टेकर के माइंड में वो बहुत ज़्यादा अपना इफेक्ट छोड़ेंगी। Content validity rests first upon an expert analysis of the material to be sampled, and the second upon the use of available statistical procedure to refine the selection of item. पहले हम जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे एनालाइज करवाते हैं, वो अपनी जो नॉलेज होता है उसके बेस पे, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज की बेस पे हमें देख के बताते हैं वेदर दिस टेस्ट हैज कंटेंट वैलिडिटी और नॉट। आफ्टर दैट जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस टाइम जो हमारी रेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, एसेंशियल आइटम्स को लाजमी तौर पे ऐड करते हैं अपनी स्टडी में या स्केल का हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के थ्रू उस आइटम की असेसमेंट की जाती है, उसे एनालाइज किया जाता है, और उस स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर में जो अच्छी फाइंडिंग्स के साथ हमारे पास आइटम्स आती हैं सिर्फ वो टेस्ट का हिस्सा रहती हैं, बाकी आइटम्स को हम टेस्ट में से निकाल देते हैं। Face validity, another name of content validity. Face validity is a degree to which an assessment or test subjectively appears to measure the variable or construct that is supposed to measure. हम एक टेस्ट को पढ़ने के बाद हमें उसमें क्या नज़र आता है, whether this test is about the same construct we have decided to measure, या हम अगर किसी पार्टिसिपेंट को, थर्ड पर्सन को स्टडी करवाते हैं अपना टेस्ट आइटम जो हमने डिज़ाइन की हुई हैं, वो हम किसी भी थर्ड पर्सन को देते हैं, एक्सपर्ट को, वो उनको रीड आउट करता है तो उससे क्या महसूस होता है कि ये आइटम्स किस चीज़ को स्टडी करेंगी। इट रेफर्स टू द ट्रांसपेरेंसी और रेलिवेंस अपीयर्स टू द टेस्ट पार्टिसिपेंट्स। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर सिग्निफिकेंट है वो ये चीज़ है कि रेलिवेंस और ट्रांसपेरेंसी होती है जो कि टेस्ट पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास एक अहम चीज़ है कि जिन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आपने इस टेस्ट को अप्लाई करना है आइटम्स उनसे रेलिवेंट हो। फॉर एग्जांपल अडोलसेंस के लिए आप एक टेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अडोलसेंस जो है उनके अंदर मैरिटल रिलेशनशिप नहीं होते,
like they are not married and do not have kids most of the time, और आपके स्केल के अंदर जो है कुछ इस किस्म के आइटम्स हों कि जो एडोलसेंस के अंदर आप असेस करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में अडल्ट आइटम्स भी मौजूद हों, नंबर ऑफ चिल्ड्रन या हाउ डू यू डील विद योर किड्स, इस किस्म की स्टेटमेंट्स, तो ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपने कुछ ऐसी असेसमेंट करनी है जो यंगर अडल्ट पे आपने करनी है, या यंग एज के अंदर जो मैरिड पीपल हैं उनके लिए आपको अलग से डिज़ाइन करना पड़ेगा। Face validity considers how suitable the content of a test seems to be on the surface. बेसिकली यही बताता है कि ज़ाहरी तौर पे आपका टेस्ट क्या नज़र आता है, उसमें क्या है, किस चीज़ के बारे में है वो। इट्स सिमिलर टू कंटेंट वैलिडिटी, अल्टरनेटिव नेम है कंटेंट वैलिडिटी का फेस वैलिडिटी। Content validity and face validity are discussed together here. Content validity is different from face validity, which refers not to what the test actually measures, but to what it superficially appears to measure. यहाँ पे ज़ाहरी तौर पे क्या नज़र आ रहा है, फेस वैलिडिटी उसके बारे में है। कंटेंट वैलिडिटी थोड़ा सा डीप एनालिसिस है, इसके अंदर हम एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी लेते हैं। Face validity assesses whether the test looks valid to the examinees who take it. जो एग्जामिनर्स हैं जो इस टेस्ट को लेंगे, इस पे अपने रिस्पॉन्सेस देंगे, क्या ये उनके लिए वैलिड नज़र आता है ज़ाहरी तौर पे। The administrative personnel who decide on its use and other technical untrained observers. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है फेस वैलिडिटी उस टाइम ज़्यादा इफेक्ट होती है जब अनट्रेंड स्टाफ जो है या अनट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो टेस्ट अप्लाई करते हैं। Content validity requires the use of recognized subject matter experts to evaluate whether test items assess defined content and more rigorous statistical tests that then does the assessment of face validity. अब कंटेंट वैलिडिटी जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा इन डिटेल प्रोसीजर है जिसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर अंडरस्टैंड करना हो तो इस तरह से किया जा सकता है। फेस वैलिडिटी में सिर्फ ज़ाहरी तौर पर आइटम्स को देखा जाता है, देखना कि दिस आइटम इज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ और नॉट, या दिस आइटम इज़ अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस और नॉट, इज दिस आइटम मेजरिंग IQ और नॉट। लेकिन जो कंटेंट वैलिडिटी है उसके अंदर ये देखने के बाद नेक्स्ट स्टेज भी अप्लाई होती है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं, रिलायबिलिटी एनालिसिस जो है उसे रन किया जाता है ये वैलिडिटी कंफर्म करने के लिए वेदर दिस आइटम इज वैलिड फॉर आवर स्टडी और नॉट, हाउ मच दिस आइटम्स विल बी रिलायबल इन फ्यूचर। इन सारी चीज़ों की असेसमेंट हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के थ्रू कंडक्ट करते हैं। इसलिए कंटेंट वैलिडिटी इज रिलेटिवली अ डिटेल्ड मेजर एज कंपेयर टू फेस वैलिडिटी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट वैलिडिटी। Content validity is most often addressed in academic and vocational testing, where test items need to reflect the knowledge actually required for a given topic area, for example, history or job skills, for example, accounting. कंटेंट वैलिडिटी में आपने ये देखना होता है कि आपका जो टेस्ट है वो किसी स्पेसिफिक नॉलेज एरिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिसमें मैंने IQ की लेवल की IQ लेवल की बात की, IQ के असेसमेंट की बात की, EQ की बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, लाइफ सेटिस्फेक्शन है। इसी तरह से हमारे पास मेंटल टफनेस एक कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास आइटम्स हैं वो रियल लाइफ में किस हद तक एप्लीकेबल है। In clinical setting, content validity refers to the correspondence between test items and the symptom content of a syndrome. हमने जब किसी क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ करना होता है तो हमारे पास जो स्केल्स मौजूद होते हैं वो किसी डिसऑर्डर की स्क्रीनिंग नहीं होते, दे आर द स्क्रीनिंग ऑफ
वन सिम्टम ऑफ अ सिंड्रोम, किसी कोई एक सिम्टम जो है जिसको वेरीफाई करने के लिए हम टेस्ट को यूज कर रहे होते हैं और वो सिम्टम्स जो है सिंड्रोम का हिस्सा होती है। Now just think a test developer is working on a brief screening instrument designed to predict student success in a psychological testing and assessment course. हम ये देखना चाह रहे हैं, टेस्ट डेवलपर इस चीज़ पे काम कर रहा है कि हम स्क्रीन आउट करें कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या और असेसमेंट के कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने सक्सेसफुल होंगे। You are the consultant called upon to blueprint the content area covered. अब आपने उसमें से फाइंड आउट करना है whether the test items are according to the need, हम जो असेस करना चाह रहे हैं पार्टिसिपेंट में उसके अकॉर्डिंग आइटम्स हैं या नहीं। योर रिकमेंडेशंस, तो आप वहाँ पे क्या रिकमेंड करेंगे। दिस इज अबाउट योर own opinion about the any kind of information that is needed on a given specific psychological measure. Here are the references from where the data is taken. If you have any queries about today's topic or any kind of feedback, you may contact on the given email address. Thank you for your attention. Thank you very much.